So today's session is basically on Sadhu Sangha, that is importance of devotee association. In the last session, we discussed that there are 5 angas of bhakti, and in the last session we discussed the first aspect, that is visiting to the holy dhams, importance of holy dham, and in this session we'll understand on the association of importance of the association of pure devotees. So before that, we'll read Shri Namamrita, will chant one round, and then we'll try to understand it. You all can see my screen, right? Yes, Prabhuji. Shri Namamrita. By chanting the Hare Krishna Mahamantra offenselessly in the association of devotees, one becomes pure in heart and loses interest in everything external. Simply by associating with a pure devotee, one becomes wonderfully advanced in Krishna consciousness. Sadhu Sangha or association with a devotee means always engaging in Krishna consciousness by chanting the Hare Krishna Mahamantra and by acting for Krishna. Specifically, chanting the Hare Krishna Mahamantra purifies one, and this chanting is therefore recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cheto Darpan Marjanam, which is his prayers from the Shikshastakam. By chanting the names of Krishna, the mirror of the heart is cleansed and the devotee loses interest in everything external. When one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is uh, impure. When one's heart is not pure, he cannot see how things are related to the Supreme Personality of Godhead. Idam hi Vishwam Bhagwan Ivetara, Srimad Bhagavatam 1.5.20. He whose heart is purified can see that the whole cosmic manifestation is but the Supreme Personality of Godhead. But he whose heart is contaminated see things differently. Therefore, by satsanga or association with devotee, one become perfectly pure in heart. This is from Srimad Bhagavatam 4.24.59. So, this session is basically about the importance of pure devotees. So, earlier we understand that pure devotees, they go door to door. यानी कि जो भी भगवान के भक्त होते थे वो लोगों के घर में जाते थे. पहले यही रिवाज था कि जो प्योर डिवोटी होता था, भगवान का प्रिय भक्त होता था, वो लोगों के अलग अलग लोगों के घर में जाता था और थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करता था. बट उसका एम कोई भिक्षा ग्रहण करना नहीं होता था. जो भी सेल्फ रियलाइज साधु होते थे वो गृहस्थों के घर में जाते थे कि अगर जस्ट टू स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन, कि किसी तरीके से उनसे कुछ बात हो सके और अगर वो थोड़े इंटरेस्टेड हो तो उन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जा सके. तो तो इस तरीके से पहले प्योर डिवोटीज अलग अलग लोगों के घरों में जाते थे और उनको अपना एसोसिएशन देते थे. लेकिन अभी जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, वैसे भी लोगों को भक्ति के बारे में पता नहीं. जो लोग सन्यास वगैरह ले भी रहे हैं, जो लेते भी हैं, उनको उनको पूरा क्लियरिटी नहीं होती, उनको आत्मज्ञान नहीं होता. तो कई बार आप देखेंगे कि कुंभ मेला वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे सन्यासी हैं जो चिलम पी रहे हैं, यानी कि नशा कर रहे हैं, या कुछ गांजा पी रहे हैं. तो एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि वो कोई रियल में कोई आध्यात्मिक उन्नति उन लोगों ने नहीं करी हुई रहती है. बस वो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उनसे एसोसिएट करने से कोई फायदा नहीं होता. तो तो श्रील प्रभुपाद इस अवस्था को समझ चुके थे कि जब उन्होंने प्रचार कर प्रारंभ किया कि अब इस तरीके से प्रचार कर पाना संभव नहीं होगा. अगर कोई अब आज की डेट में, क्योंकि जो भी सन्यास वस्त्र धारण किए हुए उसमें बहुत सारे मिक्स वैरायटी के लोग होते हैं. कई मोस्टली भिखारी होते हैं, कई जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं उससे फिर अलग अलग तरीके का नशा कर रहे होते हैं. तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश किया कि लोग खुद से आए और जो रियल में साधु हैं, भले उनका ड्रेस किसी का गेरुआ हो सकता है या किसी का सफेद भी हो सकता है, लेकिन रियल में साधु पुरुष उसके द्वारा बने जिससे लोग एसोसिएट कर सकें. क्यों? क्योंकि अगर जो डिवोटीज हैं उनसे अगर कोई एसोसिएट करेगा और उनके साथ में भगवान का नाम जप करेगा तो तुरंत ही उसका हृदय प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा, उसका हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा. और जैसे जैसे वो धीरे धीरे भगवान का नाम जप करता जाएगा, धीरे धीरे पूरी तरीके से वो पवित्र हो जाएगा और
कोई भी एक्सटर्नल चीजें जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें जो पहले उसको सुख देती थी, वो अपने आप ही उससे उसका मन भर जाएगा। उसको समझ में आने लगेगा कि ये तो मैं इतने सालों से ये चीज ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई सुख नहीं है। और उससे और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो वो देखेगा कि किस तरीके से वो स्वयं ही पूरी तरीके से अ- हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा स्वयं से ही सुख की अनुभूति कर सकता है। सो simply by associating with pure devotee one becomes wonderfully advanced in krishna consciousness। तो प्योर डिवोटी क्या होता है? कृष्ण भगवान बोलते हैं, बताते हैं कि वैसे तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भौतिक जगत में देखा जाए तो कई बार हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि अरे ये इतना गरीब क्यों है, ये भिखारी क्यों है, ये अंधा क्यों पैदा हुआ, ये लूला क्यों है, ये लंगड़ा क्यों है। परंतु भगवान स्वयं बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जस्ट गिव मी 1 मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी। हाँ, तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि वैसे तो इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं, मैं किसी से भी कोई सरोकार नहीं रखता हूँ। इसका अर्थ ये है कि कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि अरे ये इंसान दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, या ये इसके पास इतना धन है लेकिन ये एकदम इसके पास एकदम धन का भाव है, भगवान ने ऐसा क्यों कर रखा है, तो भगवान खुद ही बताते हैं कि मैं भौतिक जगत में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता हूँ। मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ। लोग अपने ही कर्मों के अनुसार, जो भी उन्होंने कर्म किए होते हैं उसके अनुसार उसका फल भोग रहे होते हैं। यानी कि पिछले जन्मों में उन्होंने अगर अच्छे कर्म किए होते हैं तो उस हिसाब से उनको अच्छा फल मिल रहा होता है, बुरे कर्म किए होते हैं तो वो बुरा फल मिल रहा होता है। लेकिन मैं कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता हूँ। भौतिक जगत की जिम्मेदारी मैंने माया देवी को दे रखी है, यानी दुर्गा देवी को, तो वही लोगों को कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल देती रहती है। लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है, यानी कोई मेरी भक्ति की तरफ अग्रसर होता है, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो मुझे सर्विस देता है, यानी वो मेरी डिवोशनल सर्विस करता है। सर्विस का अर्थ ये होता है कि देर इज ए रेसिप्रोकेशन, या लव का अर्थ ये होता है देर इज ए रेसिप्रोकेशन। तो अगर कोई मेरी डिवोशनल सर्विस करता है तो फिर मैं उसकी तरफ लविंग रेसिप्रोकेशन क्या कह सकते हैं कि मेरा फिर उसके प्रति झुकाव हो जाता है। यानी भक्त मेरे मेरे में है, भक्त हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है और मैं भक्त के बारे में सोचता रहता हूँ। तो अब प्योर डिवोटी कौन है, साधु कौन है? जो भी जिसको भी इस चीज को समझ में आ गया कि कृष्णा भक्ति ही सर्वोच्च पद्धति है, या भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लाइफ का एम है, जो भी इस भक्ति मार्ग में लग जाता है, भले वो शुरू में उसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे जितने भी नए भक्त आते हैं शुरू में उनको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये कृष्णा भक्ति ही बेस्ट चीज है जो लाइफ में हम अचीव कर सकते हैं। ये चैंटिंग ही मुझे लाइफ में करनी है, मुझे भक्ति ही करनी है। लेकिन कई बार होता है कि पुरानी आदतों की वजह से वो लोग भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि माया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। बार बार वो भक्ति के पथ से गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं कि नहीं, मुझे ये समझ में आ गया कि यही मेरे लाइफ का एम है, भक्ति में ही मुझे प्रोग्रेस होना। और जब वो उसी में लगे रहते हैं तो भले उनके अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो भी भगवान बोलते हैं कि वो साधु सदृश हैं। उनको कभी भी हम लोगों को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका इस भौतिक जगत में किसी का भी एम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना नहीं है। अगर किसी का भी ये एम होता तो लोग जरा सी इतनी सी बात को समझ सकते होते कि किस तरीके से अ, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। यानी कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे जो हमारे माता पिता ने किया, जो बाबा दादी ने किया, नाना नानी ने किया, हम उससे कुछ अलग करने वाले हैं। तो रियल में ये सब एक माया का इन्फ्लुएंस ही होता है कि जिससे हमें लगता है हम कुछ शायद अलग करने वाले हैं। उन्होंने लाइफ में कुछ अलग नहीं किया और उनकी लाइफ कट गई, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो वो हमें उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम लोग भी बहुत ही जल्दी हिस्ट्री बनने वाले हैं।
और कुछ भी इस पूरे भौतिक जगत के नक्शे में कुछ अंतर नहीं आने वाला है। कोई कुछ भी करता रहे, चीजें उसी तरीके से चलती रहती हैं। तो वो माया के वशीभूत हर कोई यहाँ पर फंसा रहता है और बार बार उन्हीं क्रियाओं को पुनः सर्वित सर्वतम वही क्रियाएं बार बार दोहराता रहता है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है तो भगवान बोलते हैं कि, और उसमें लगे रहना चाहते हैं, यानी उसका कोई और मोटिव नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रहा होता है, हृदय से चाहता है कि वो भगवान की भक्ति करे, भले वो उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, लेकिन भगवान उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। और फिर उन्हीं में से कुछ होते हैं जो एकदम ही प्योर डिवोटी होते हैं, यानी भगवान के प्रिय पूरी तरीके से प्यूरिफाइड भक्त होते हैं, जैसे कि हम लोग के स्पिरिचुअल मास्टर्स, हरे कृष्णा, स्पिरिचुअल मास्टर्स जो कि तीन, जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो तीन प्रक्रियाओं से पूरी तरीके से प्यूरिफाई होते हैं, यानी कि साधना भक्ति के द्वारा, या कृपा या तो कृपा सिद्ध होते हैं, या साधना सिद्ध होते हैं, या फिर नित्य सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध मतलब जो कि भौतिक जगत में आते भी हैं तो हमेशा वो भगवान का ही ध्यान करते हैं, हमेशा उनके मन में भगवान की ही रिमेम्बरेंस होती है, उसके अलावा उनका लाइफ में कुछ किसी तरफ झुकाव नहीं होता है। तो अगर ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स वगैरह का अगर कोई संग करने का किसी को मौका मिलता है तो वो समझ सकते हैं कि सिर्फ उनसे मूवमेंट्स एसोसिएशन की वजह से इंसान पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है। तो sadhu sang or association with devotee means always engaging in Krishna consciousness by chanting the Hare Krishna Mahamantra and by acting for Krishna. Specifically, chanting the Hare Krishna Mahamantra purify one, and this chanting is therefore recommended by Shri Chaitanya Mahaprabhu. अगर कोई भी भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो धीरे धीरे जो उसने अपनी पहचान अपने शरीर के द्वारा बना रखी है वो धीरे धीरे उसकी जाती रहती है, और वो अपनी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अपनी रियल पहचान को समझ पाता है। फिर उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे जब तक वो अपने शरीर, अपने को ये शरीर मान रहा रहता है, तब तक उसको बहुत अलग अलग तरीके से दुख हो रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से परेशानी हो रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी। लेकिन वो चैंट करते करते जब उसको रियलाइजेशन होता है कि ही इज अ स्पिरिट सोल विच हैज नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, जो कि बहुत ही प्योर चैंट वो करता रहेगा, देन ही विल बी एबल टू रियलाइज इट। देन उसके बाद उसे एक्सटर्नल स्थिति की वजह से कुछ परेशानी नहीं होती है। और जब वो, तो इस भक्ति मार्ग में बढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि अरे मैं प्यूरिफाई हो जाऊं, होना शुरू होऊंगा, मैं भगवान का भक्त बनूंगा, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कोई टेक केयर करने वाला होगा कि नहीं, और मैं पूरी तरीके से भगवान में ही अगर केंद्रित हो जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कल को मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अगर कोई पूरी तरीके से प्योर डिवोटी होता है तो वो भौतिक जगत की जो माया द्वारा जिस तरीके से नचाया जा रहा रहता है उससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, और उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने खुद ही अपना एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ भक्ति करने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग इस्कॉन में सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, तो इस्कॉन के इतने सारे सेंटर्स हैं और हर दिन लाखों लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, फ्री में सब लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। इतने इतने भव्य मंदिर हैं जो कि करोड़ों करोड़ों रुपए के हैं, जिनका कोई कल्पना नहीं है। तो वो किस तरीके से अपने आप भगवान सब मैनेज कर रहे हैं, यानी कि श्रील प्रभुपाद की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो किस तरीके से पूरे विश्व में सब लोग खरीद रहे हैं, उससे उसके द्वारा अपने आप ही धन आ रहा है। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि कृष्ण भगवान स्वयं, उसके बाद अगर कोई प्योर डिवोटी बनने की कोशिश करता तो कृष्ण भगवान स्वयं सब कुछ अरेंज करते हैं, और जब भगवान अरेंज करते हैं तो फिर किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार इवन डिवोटीज जो टेंपल में रहते हैं वो भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मंदिर में जिस समय अभी कोविड हुआ था, कोरोना काल हुआ था, तो जितने भी और धार्मिक संस्थान थे उन लोगों ने अपने सब शटर बंद कर लिए थे। खाली इस्कॉन ही ऐसा था कि हर दिन इवन एक एक मंदिर, इस्कॉन दिल्ली दिल्ली मंदिर भी एक एक दिन में 4-4 लाख लोगों को भोजन खिला रहा था। तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अरे हम भी चिंता करने लगेंगे कि अरे कैसे होगा आगे, हमारे पास फंड कैसे आएगा, तो फिर हम भगवान की जगह अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर आश्रित होने लगेंगे। पर इन रियलिटी तो हम लोग कृष्णा के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए जितना मर्जी उतना प्रसाद वितरण करो और कभी कुछ कमी नहीं होगी। और जो कि फैक्ट बात है, कभी भी एक आप देखेंगे इस्कॉन में जितना भी प्रसाद वितरण होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, कभी कुछ कमी नहीं होती, क्योंकि रियल में सब भगवान मेंटेन करते हैं। तो प्रभुपाद का कहने का ये तात्पर्य था कि एक इंसान ये सोचता है कि उसकी फैमिली है मे बी 4-5 लोगों की,
वो सोचता है कि उसको उसको 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। अगर ये सोच सकता है कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ सारे भक्त कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है, और तब भी लाखों लाख लोगों को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि जो अलग अलग जगह काम करते थे, उन सब लोगों को भी आज जरूरत है, तो हम लोग खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अगर चाहेगा तो फिर कभी कमी नहीं होती। तो इसीलिए कभी डरने की जरूरत नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। तो ये समझने की जरूरत है। प्रभुपाद ने एग्जांपल दी कि हम लोग का कोई ऐसा, अगर देखा जाए कि कोई हम लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाखों लाख लोगों को फ्री में हम लोग भगवान का भोजन खिला सकते हैं। तो एक फैमिली में या एक पर्सन सोचे कि उसके खाने का क्या होगा, तो उसे समझना चाहिए कि भगवान सब चीजें पूरी तरीके से देखता है। अगर कोई भक्ति करना चाहता है, उसका वो पर्सनल भगवान ध्यान रखते हैं। हम लोग ने लास्ट एक सेशन में अर्जुनाचार्य की स्टोरी भी सुनी थी कि अर्जुनाचार्य किस तरीके से उन्हें ये डाउट हुआ कि भगवान कैसे स्वयं किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो डिवोटी है, जो भक्ति कर रहा है। भगवान ने बोला है कि आई प्रोवाइड व्हाट 1 लाख एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट ही हैज। तो उनको लगा कि नहीं, भगवान कैसे खुद से ये कर सकते हैं। तो उसे प्रूफ करने के लिए, उस पॉइंट को, भगवान ने स्वयं आके उसके घर में जितना भी उसको सामान की जरूरत थी या नहीं थी, वो सब उन्होंने पर्सनली जाके प्रोवाइड किया। तो ऑब्वियसली पर्सनली उनको आने की जरूरत नहीं है। वो पर्सनली वो कुछ ना कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि कि किसी को भी, जो भी उनकी भक्ति कर रहा है, उसे कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अर्जुनाचार्य डाउट कर रहा था, तो उन्होंने इवन पर्सनली स्वयं अपने रूप में भी आकर ये चीज प्रूफ करी कि मैं पर्सनली भी आके मदद कर सकता हूँ। तो इसलिए भक्ति करते समय कोई डरने की जरूरत नहीं कि अरे मैं भक्ति में बहुत कहीं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कल को मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी भक्ति करने की कोशिश करता है, तो भगवान उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में बाकी सारे लोग भले ही माया के द्वारा लात खा रहे हो, लेकिन जो भक्ति करता है उसको फिर माया की लात नहीं पड़ती है। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अ, माया की लात क्यों नहीं पड़ती। अब लोग ये सोचेंगे कि क्यों ऐसा है, अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्यों पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड बना ही इसीलिए है कि लोग भक्ति करें, भगवान के धाम वापस जाएं। तो अगर कोई पूरी तरीके से भक्ति कर पा रहा है, तो भगवान उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो मेरे धाम वापस आए। अगर उसको इंटेलिजेंस की कमी होती है, कहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना है, तो भगवान अंदर से उसको इंटेलिजेंस देते हैं, अंदर से डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि भगवान हर तरफ से मदद कर सकते हैं, बाहर से गुरु के रूप में, अंदर से परमात्मा के रूप में। So, uh, so Chetodarpan Marjanam, by chanting the names of Krishna, the mirror of heart is cleansed and the devotee loses interest in everything external. जो भी भक्ति नहीं कर रहा है, उसको, अगर उसके पास नॉर्मल कार होती है, वो सोचता है कि अब मेरे पास थोड़ा और, मैं और मेहनत करूं, अगली बार मैं और थोड़ी लग्जरी कार खरीदूंगा। फिर उसको थोड़ा और पैसा आता है, वो लगता है अब और मैं मेहनत करूंगा, अब मैं और लग्जरी कार खरीदूंगा, अब मैं ऑडी खरीदूंगा, अब मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा। और एक्चुअल में वो किसी भी कार में कोई बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अंदर से जो हैप्पीनेस है, वो किसी भी, आप किस तरीके की सीट पे बैठे हैं, किस तरीके की कार चला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रियलिटी में टेंशन उतना ही है। अगर आप बीएमडब्ल्यू ऑडी चला रहे हैं, तो आपको और डर लगेगा, अरे बगल वाले ने कहीं जरा सा भी मुझे ठोकर मार दी, तो मेरा तो इतना लाखों का नुकसान हो जाएगा। वही कोई अगर 800 कार लिए होगा, तो उसको लगेगा अरे मेरे को लगी भी तो मेरा कितना 1000 रुपए का नुकसान होगा। तो कोई टेंशन उससे कम नहीं हो जाती। लेकिन इंसान क्या होता है, भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सोल आती है, वो मटेरियल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एवरीवन वांट्स टू बिकम कंट्रोलर। कोई अपनी फैमिली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोई नेशन, कोई अपना स्पाउस, कोई बच्चे, कोई कुछ भी नहीं होता तो अपने पेट को ही पाल लेता है कि डॉग या कैट को हम कंट्रोल करेंगे। तो रियल में कोई भी अगर कृष्णा को सरेंडर करे, तो ये सारी प्रोपेंसिटी कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है या मुझे कुछ दूसरों को दिखाना है, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो समझ पाएगा कि एक्चुअली कोई फायदा नहीं। दूसरे लोग भी कितने समय के लिए हैं, 40 50 60 70 साल के लिए। मैं भी 40 50 60 70 साल के लिए हूँ। और उसके बाद मेरी स्थिति इस भौतिक जगत में फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल की तरह स्थिति होने का अर्थ क्या है कि आज तो मैं इंडिया में हूँ, मैं यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ बनाऊंगा, अगले ही पल हो सकता है मुझे किक पड़ेगी, मैं चाइना में पैदा होऊंगा। फिर उसके बाद अगली बार मुझे किक पड़ेगी, तो फिर हो सकता है कि मैं अमेरिका में पैदा हूं। फिर अगली बार किक पड़ेगी, फिर मैं हो सकता है कि मैं इराक में पैदा हूं। तो हर जगह मैं कुछ ना कुछ अपना बनाने की कोशिश करूंगा। घर बनाया, बीवी बच्चे की, और अगली, और क्योंकि ये शरीर एक फुटबॉल की तरह, उसको किक पड़ती है, हर बार शरीर बदलना है। शरीर बदल के आज को इंडिया में है, कल को कहीं और होगा, परसों को कहीं और होगा। तो इस तरीके से इंसान की स्थिति बनी रहती है।
सो अगर कोई जरा सी भी भक्ति करता तो उसे ये समझ में आ जाता, फिर वो टाइम नहीं वेस्ट करता कि अब मुझे, कि अब मेरे पास होंडा सिटी है तो अब मुझे ऑडी लेनी है या मुझे बीएमडब्ल्यू, इस सब में वो समय बर्बाद नहीं करता है। उसको पता है कि उसको रियल में बेसिक नीड्स क्या है, वो उसकी अपने आप भगवान फुलफिल करते हैं। वो जिस भी स्थिति में रहता है भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि कुछ स्थिति बदलने की जरूरत है। अर्जुन जब युद्ध कर रहा था उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ तुम युद्ध छोड़ दो और संन्यास ले लो, जो कर रहे हो वो करते रहो, बस खाली मुझे ध्यान में रखो। और मुझे ध्यान में रखना किस तरीके से पॉसिबल है, कोई भगवान को कैसे ध्यान रख सकता है? जिस तरीके से लोग ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड लोग या वाइफ लोग जो भी, और किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान हमेशा रखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनसे प्रेम होता है कि वो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा कैसा है, या मेरे माता पिता कैसे हैं, या फिर मेरे पति या पत्नी कैसे हैं। तो जिससे भी प्रेम होता है उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। उसी तरीके से अगर कृष्णा से कोई प्रेम करेगा तो वो कुछ भी कार्य करता रहे, उस समय वो उस कार्य के साथ में भी कृष्ण भगवान को के बारे में सोच सकेगा। So when one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is impure. अगर कोई भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा प्रभावित हो जाता है तो उसका हार्ट पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। वो खुद देखेगा कि वो उसका बिल्कुल सेंस कंट्रोल नहीं है। अगर वो नाम जप भी नहीं करेगा प्रॉपर तो खुद ही देखेगा जहां भी चाहे उसका मन भटका जा रहा है। फेसबुक खोला तो फेसबुक में ही भटक के रह गया, व्हाट्सएप खोला तो वहीं भटकता रह गया, यूट्यूब चलाया तो वहां से ही भटकना शुरू हो गया। तो अगर नाम जप प्रॉपरली नहीं करेगा तो फिर एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा वो हमेशा कंट्रोल होता रहेगा। और नाम जप करेगा तो वो समझ पाएगा कि रियल में ये तो शरीर तो आउटर कवरिंग है, तो किसी भी और एक्सटर्नल शरीर या किसी दूसरे के शरीर से प्रभावित होना या वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि वो उसको भी समझ में आएगा कि ये सारी प्रॉब्लम का जड़ ही यही है, ये भौतिक शरीर। तो उसकी क्या एक्टिविटीज है उससे कोई अटैच होने की जरूरत नहीं है, उसकी क्या एक्टिविटीज हुई, उसने क्या एक्टिविटी करी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। So when one's heart is not pure, he cannot see how things are related to Supreme Personality of Godhead. अगर किसी का हृदय साफ नहीं होता है तो वो नहीं देख पाएगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें भगवान पर ही टिकी हुई हैं। सो इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा। He whose heart is not purified can see that the whole he whose heart is purified can see that the whole cosmic manifestation is but the supreme personality of Godhead. But he whose heart is contaminated see things differently. Therefore, by satsang or the association with devotee, one become perfectly pure in heart. तो अगर हम लोगों को याद हो तो भगवत गीता के समय एक बार अर्जुन ने भगवान से अपना विराट स्वरूप दिखाने की भी बात करी थी, भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने की बात करी थी। तो विश्व रूप में क्या भगवान ने दिखाया था? जस्ट गिव मी वन। हरे कृष्णा। सो भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था तो उसमें अर्जुन ने देख पाया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा पूरी की पूरी सृष्टि भगवान के ही प्रकाश में या भगवान के एक्सपेंशन में पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। तो जो भी भगवान की प्योर हृदय से भक्ति करता है वो देख पाता है कि हर चीज भगवान की एनर्जी है। अगर कोई चीज यानी मिट्टी है या पेड़ है या पौधे हैं वो सब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। इवन जो हमारी बॉडी भी है वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, क्योंकि बॉडी भी उसी सॉइल की यानी उसी मिट्टी की बनी, मिट्टी पानी और वही उसी सब के मिश्रण से बॉडी भी बनी हुई है। तो ये सब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी और भगवान की इंटरनल एनर्जी यानी कि सोल है, जो कि जिससे कि हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सी लिविंग एंटिटीज है। जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं वो सब के अंदर भगवान की इंटरनल पोटेंसी यानी कि जीवात्मा होती है, सोल होती है। तो जो भी भक्ति करेगा वो चीजों को देख पाएगा कि किस तरीके से हर चीज भगवान से ही कनेक्टेड है, और इस तरीके से वो हर चीज भगवान के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन जो भक्ति नहीं करेगा वो हर चीजों को अलग अलग तरीके से देखेगा। इवन उसका आपस में भी बहुत मतभेद रहेगा, क्योंकि वो ये नहीं देख पाएगा कि जितने भी जीवात्मा है वो सब कहीं ना कहीं भगवान के ही अ, भगवान के ही इटर्नल एसोसिएट हैं या भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन वो उनपे भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, क्योंकि उसको लगेगा नहीं ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। जिसे प्रहलाद महाराज ने बोला भी है कि मैं अपने माइंड के अलावा मैंने इस दुनिया में कोई अपना दुश्मन नहीं पाया। यानी अब हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? भक्ति करके। अगर कोई भी चैंटिंग करता है, कोई भी भक्ति करता है, तो
मन पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाता है, कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाती है, और तब वो देख पाता है कि एक्चुअली में ये जो फ्रेंड्स या एनिमी ये सब हमारा बॉडली लेवल पे आइडेंटिफिकेशन है, रियल में ना तो कोई एनिमी है, ना तो कोई separated है from Krishna. Everything is basically somehow connected to Krishna. Just because of the forgetfulness state. यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि इंसान का भले शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा का कभी लॉस नहीं होता। तो तो आत्मा का तो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन मेन सबसे दुख की बात क्या होती है कि जब वो उसकी इंसान की या फिर सोल की ये सिचुएशन होना कि वो पूरी तरीके से फॉरगेटफुल हो जाए कि उसकी रियल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, रियल में वो कृष्णा से किस तरीके से कनेक्टेड था, किस तरीके से उसको, जिस तरीके से वो भौतिक श्रम में यहाँ लगा हुआ है, बॉडी से अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ये उसके लिए दुख का कारण है। बट रियल में जब जिस भी समय वो भगवान की तरफ वापस अपना मुख करेगा, जिस समय भी वो भक्ति करेगा, तो फिर से अपनी सच्चिदानंद स्टेट को प्राप्त करेगा, यानी कि full of bliss, full of knowledge and eternity. So anyway, soul is eternal, full of knowledge and bliss, but because being covered with this body, which is all matter, and with the identification of this himself with the body, because body is not eternal, body is temporary, perishable, bodily consciousness has no knowledge and is full of basically suffering. So सच्चिदानंद बॉडली आइडेंटिफिकेशन के कारण उसे नहीं होता है, लेकिन जिस भी समय से वो भक्ति स्टार्ट कर देगा तो वो अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ पाएगा। तो अब हम लोग सब लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग सब अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी। सबके पास चैंड बैग है? जी जी ठीक है, हम लोग एक राउंड चैंट करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द रिमेनिंग सेशन। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे राम हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्ण, हरे 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 हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधारा श्रीवास श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा गौर वृंदा, let me know if my screen is visible to you all. Okay, is my voice still breaking? now it's clear. No, Prabhuji, it's fine. It's fine. Yeah, thank you. So लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग की भक्ति वापस प्रज्वलित हो जाती है। तो यानी भक्ति हम सबके हृदय में है, लेकिन जिस तरीके से राख में थोड़ी चिंगारी होती है या तो उसमें से धुआं निकल रहा होता है, अगर कोई उसको हवा करे तो ऊपर से पूरी काली परत हट जाती है, फिर से आग दिखाई देने लगती है, जलने लगती है। तो उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि 5 एस्पेक्ट्स पे बात हुई थी लास्ट सेशन में, कि जिससे कि वो भक्ति वापस फिर से स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। उसमें से एक एस्पेक्ट था जो लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कि कोई भी होली प्लेसेस को विजिट करना, यानी कि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने जाना। उसमें से हम लोग ने बात करी थी कि किस तरीके से मथुरा, वृंदावन, नवदीप, मायापुर धाम, अगर इन सब जगहों पे कोई भी जाता तो ऑटोमेटिकली वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि इंसान प्यूरिफाई होता है और उसके मुंह से भगवान का नाम जब निकलने लगता है। आई थिंक अंशुमन प्रभु अपना उस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना करा था आपने प्रभु। आप चाहे तो सबको भी बता सकते हैं जो हाँ आपका प्रभु जी, एक्सपीरियंस हो तो। हाँ प्रभु जी, हम एक्चुअली यहाँ योगा क्लास गए थे। योगा क्लास हम ज्वाइन किए थे बेंगलोर में। तो वहाँ पर एक्चुअली हमें इंट्रोड्यूस हुआ था भगवत गीता आज इट इज।
और वो गुरुजी भी बोले थे एक बार कि क्या वृंदावन में जो भी जाता है फिर वो कृष्णा जरूर कृष्णा भक्ति का इसमें डूब जाते हैं उसमें, मतलब कृष्णा भक्ति के में आ ही जाते हैं। तो एक बार कभी ट्राई, मतलब बोल रहे थे कभी जाने के लिए, तो 2014 में सिंस माय इन-लॉज आर स्टेइंग देयर, so in 2014 actually I went there. So after from 2014, then after returning, then I started chanting. So I started chanting for one malas per day, but now I am chanting more than one mala, 16 malas or 20 malas like that I'm chanting. हरि बोल, वेरी नाइस। सो एक्चुअली ऐसा नहीं भी बन जाता, वो सब डिवोटी बन जाते हैं। एक्चुअली जो जितना प्यूरिफाई होगा, तो हो सकता है कि कोई किसकी कवरिंग कितनी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सारे लोग ही नहीं वहां जाने से भक्ति करने लग जाते, बट हाँ वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अगर कोई वहां रुकता है तो अपने आप ही वहां जितने भी लोग हैं वो जब आपस में बात करते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, या फिर कृष्ण भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं। इतने सारे मंदिर हैं कि सुबह अपने आप ही मंगल आरती से सबकी आंख खुलती है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि अपने आप ही उसके मुंह से भगवान का नाम निकलने लगेगा। Same thing, even my mother-in-law also had said earlier that she also came into Krishna Bhakti after visiting Vrindavan. Once she visited Vrindavan, so in that way she also is connected like that. She was saying. तो मेन यही है कि अगर किसी के हृदय में दबी भी रहती है भक्ति, तो अपने आप ही अगर वो ये सब पुण्य स्थानों पर जाता है, धार्मिक स्थानों पर जहां पर भगवान की भक्ति होती है, तो उसकी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिर से स्ट्रांग होती है। इवन प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद सबको स्ट्रेस करते थे कि जितने भी डिवोटीज हैं वो कम से कम पूरे विश्व में जो भी भक्ति का प्रचार करें, कम से कम एक बार जन्मदिन होता है यानी कि गौर पूर्णिमा, तो उस समय जरूर मायापुर में सब लोग इकट्ठे हुआ करें। तो एक नया भक्त था, तो उसने बोला कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी भक्त हैं वो पूरे विश्व में कहीं कहीं पर भी रहते हैं, वो अगर ट्रेवल करके आएंगे तो कितना उसमें ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा होगा। तो प्रभुपाद ने बोला तो बेटर ये है कि वो लोग खाना पीना भी छोड़ दें, तो उसमें सारा ही खर्चा बच जाएगा। तो वो भक्त नहीं समझ पाए कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि बात खर्चे की नहीं है, जो लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज में हर जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं वो इतने सारे मटेरियलिस्टिक लोगों से एसोसिएट करने के कारण पूरी तरीके से कंटामिनेटेड हो जाते हैं। अगर वो साल में एक बार नवदीप मायापुर धाम आते रहेंगे तो फिर से वो प्यूरिफाई हो जाएंगे, फिर से वो रिजुवनेट हो जाएंगे और तब वो भक्ति का प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अगर वो इन स्थानों पर नहीं जाएंगे और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ एसोसिएट करते रहेंगे, भले उनको भक्ति बताने की कोशिश करें, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएंगे मटेरियल एसोसिएशन से, और उसका नुकसान ये होगा कि वो खुद भी भक्ति के पथ से गिर सकता है। तो जैसा कि लास्ट सेशंस में बताया भी था कि भक्ति एकदम तेज तलवार की धार पे चलने की जैसी होती है, कि इसीलिए सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवोटी एसोसिएशन। अगर कोई भक्तों के संग में है तो वो भक्ति कर पाएगा। अगर सारा का सारा एसोसिएशन सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ खाली किटी पार्टीज या पॉटलक ग्रुप, और इसमें सारे के सारे लोग एकदम मटेरियलिस्टिक हैं, सिर्फ पैसे रुपए की बात करते हैं, तो आपको कभी भी आप इस रियलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में मैं शरीर तो हूं ही नहीं। तो हम लोग वो चीज मिस कर जाएंगे। हम लोग, आप लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि हम लोगों को भी पश्चाताप ना करना पड़े। जिस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मरते समय पश्चाताप किया था कि मैं क्यों नहीं चीजों को समझ पाया, मैं पूरी दुनिया जीतने में लगा रहा लेकिन मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। उसने कहा था ना, ताबूत से बाहर मेरे हाथ निकाल देना कि लोग देख सके कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। या वो आइंस्टाइन हो कि मरने से पहले उसको ये समझ में आया कि मैंने जो अपना पूरा समय बिता दिया, अगर अगली बार मुझे अगला जन्म में मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने बारे में समझने की कोशिश करूंगा। तो वही चीज हम लोगों के साथ ना हो। अगर हम लोगों को मौका मिल रहा है भक्ति करने का, तो मृत्यु के समय ये जाके ये रियलाइजेशन करने से अच्छा है कि अभी रियलाइज करके भक्ति में प्रोग्रेस हो। तो इसीलिए जितना भी हो सके उतना डिवोटी एसोसिएशन ले। डिवोटी एसोसिएशन, प्योर डिवोटी का एसोसिएशन पर्सनली तो हम लोग ले ही सकते थे। जब इस्कॉन वगैरह खुलता था, हम लोग भक्तों का के द्वारा श्रवण कीर्तन, जो उनके द्वारा भगवत गीता क्लासेस या श्रीमद् भागवतम क्लासेस होती हैं वो हम लोग अटेंड कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं भी है, तो भी हम लोग ऑनलाइन या फिर यूजिंग टेक्नोलॉजी एज वेल वी कैन गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये जरूरी नहीं है कि अब तो कोई चारा ही नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ मटेरियल एसोसिएशन कर रहे हैं। अभी
भी अगर आपके पास समय है तो यूट्यूब में इतने सारे प्रभुपाद के वीडियोस पड़े हुए हैं, और अगर कोई प्रभुपाद का एक लेक्चर भी सुनेगा तो वो समझ में उसको आ जाएगा कि उसकी रियल में क्या सिचुएशन है। सबके पास श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता होगी, अगर नहीं भी है हर चीज प्रभुपाद की सारी किताबें इंटरनेट में फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है आपके पास समय है, आप किताबों का संग कर सकते हैं। तो डिवोटी एसोसिएशन हमेशा अगर कोई बना के रखता है तो कभी भी वो मार्ग से पूरी तरीके से भटक नहीं जाएगा। कभी ना कभी अगर वो डिवोटी एसोसिएशन बनाए रखता है तो भक्ति में वो जरूर से प्रोग्रेस करेगा। मैं अपने बारे में भी बता सकता हूँ कि मैं पहले पुणे में था, भक्तों के संग में था, फिर मैं ट्रांसफर लेके नोएडा गया तो उस समय मेरा कोई भक्तों का संग नहीं था, लेकिन मेरे पास श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई श्रीमद् भागवतम थी, तो मैं उसी को पढ़ता था और मुझे उससे उनका एसोसिएशन प्राप्त होता था। तो इस तरीके से अगर पर्सनल एसोसिएशन मिल जाए या फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन कौन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग सब लोग ग्रुप में ही देख सकते हैं कि कौन कौन आपस में भक्ति कर रहा है, तो एक दूसरे का संग कीजिए और कृष्णा के विषय में श्रवण कीर्तन कीजिए। क्योंकि अदर देन दैट अगर कुछ भी बातें करी जो शरीर से रिलेटेड है, जो वहीं पर खत्म हो जानी है, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि अरे हमारी कार कैसी है, या फिर हमारी ऑफिस में कितना अच्छी हमारी पोजीशन है, या फिर हमारा डेजिग्नेशन कितनी अच्छी है, या हमारे पास सैलरी कितनी है, हमारा घर कितना बड़ा है, हमारा अपार्टमेंट कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा है, कितने हम पॉश एरिया में, ये सब बातें तो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जानी, फिर से रिवाइज हो जाएगी चीजें। कल को पता नहीं कि किस तरीके का इंसान का शरीर मिलना भी है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जो भी एक्टिविटीज करी है, और यहाँ पे मिलेगा कि कहाँ जाके मिलेगा, ISIS कैंप में भी लोग जाके पैदा हो सकते हैं, कहाँ पर जन्म होगा पता नहीं। तो इन सब बातों का जिसे प्रजल्पा बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्रजल्पा मतलब कि जो बातें एकदम टेम्परेरी हैं, जिस तरीके से हम लोग की ABCD ये सारी मटेरियल एजुकेशन टेम्परेरी होती है, शरीर खत्म होता है, भले आपने PhD करी हो, लेकिन अगले जन्म में फिर आपको ABCD से शुरू करना है। तो इन सब व्यर्थ की बातों से बच के जितना भी हो सके उतना डिवोटी एसोसिएशन साधु संग करने की जरूरत होती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी को यूज करके भी लोग साधु संग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां हैं, और भगवान की शक्तियों का अगर कोई सही इस्तेमाल कर रहा है, लोग मोबाइल का इस्तेमाल करके भी प्रभुपाद का संग कर सकते हैं, प्योर डिवोटीज का संग कर सकते हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल करके वो नरक में भी गिर सकते हैं। उसी में वो वीडियो चला के, यूट्यूब वीडियोस या मूवी देख के वो नरक के द्वार में भी गिर सकते हैं। तो ये मौका हम सबके पास होता है, तो उसके लिए किस तरीके से हमें अपने को डायरेक्शन देना है, उसी के प्रभुपाद ने बोला है कि सुबह के समय नाम जप करने से हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, किस तरीके से कृष्णा का संग करो। मंगल आरती करने से डीटी दीज आर आल्सो कृष्णा, कृष्णा का संग करो। इवन अभी सुरभि कुंज भक्ति सदन द्वारा भी मॉर्निंग में 2 स्काइप ग्रुप हैं जिसमें मंगल आरती होती हैं, यानी कि एक ग्रुप में मंगल आरती और चैंटिंग होती है, और कुछ लोग सिर्फ चैंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो एक स्काइप ग्रुप में सिर्फ चैंटिंग होती है। तो अगर कुछ नहीं, अगर ये लगता है कि नहीं हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते, तो आप लोग उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है मुझे वो मैसेज कर सकता है, मैं उस स्काइप ग्रुप का लिंक भेज सकता हूँ। तो उसमें डेली सुबह एक में 4:30 बजे से स्टार्ट होती है चैंटिंग, एक में 5:30 बजे से मंगल आरती और चैंटिंग होती है। किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करके आप डिवोटीज का ऑनलाइन संग करके भक्ति कर सकते हैं। या अभी कोरोना के बाद से कितना ऐसी सिचुएशन हुई कि हम लोग डिवोटीज लोग कोई भी मिल नहीं पाते थे, तो तब भी कृपा में प्रभु या रणछोड़ प्रभु डेली भागवतम क्लास इवनिंग में उन लोगों ने कंडक्ट कर करके हम लोगों को डिवोटी एसोसिएशन पूरी तरीके से प्रोवाइड करते रहे। और डेफिनेटली हम लोग अब साथ में मिलके प्रसाद खाते हुए बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम दूरी से ही सम एसोसिएशन इज बेटर देन नो एसोसिएशन। So in the Padma Puran, there is a nice statement praising the service of the Vaishnavas or devotee. In that scripture, Lord Shiva tell Parvati, my dear Parvati, there are different method of worship, and out of all such method, the worship of Supreme Person is considered to be the highest. But even higher than that is the worship of then the worship of the Lord is the worship of Lord's devotee. तो शिव भगवान स्वयं पार्वती जी को बता रहे हैं पद्म पुराण में। अगर आप लोग के पास समय हो तो कभी स्क्रिप्चर में पद्म पुराण पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी चीजें शिव जी ने विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की ग्लोरिफिकेशन में बोली हैं। तो उसमें वो पार्वती जी को एक और चीज बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट वर्शिप जो होती है वो होती है भगवान की, यानी विष्णु की, यानी कृष्ण भगवान की। लेकिन उससे भी बेटर वर्शिप, उससे भी ऊंची वर्शिप अगर कोई है तो वो वर्शिप है भगवान के भक्तों की। तो भगवान के भक्तों का बहुत ज्यादा महत्व क्यों है? अगर हम लोग देखें तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, डिक्लेयर इट बोल्डली टू द यूनिवर्स दैट माय डिवोटी नेवर पेरिश।
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और वो भी वो अर्जुन से क्यों बुलवा रहे हैं? वो चाहते तो खुद भी बोल सकते थे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपना वचन तो फिर भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों का वचन कभी भी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं अर्जुन से ये चीज कहलवा रहा हूँ कि अर्जुन ये डिक्लेयर करो पूरे विश्व में कि मेरा अगर कोई भक्त है तो उसका कभी भी किसी परिस्थिति में नाश नहीं होगा। अगर कोई भक्ति करता है तो वो ये चीज देख सकता है कि किस तरीके से हर सर्कमस्टांसेस में वो आखिरी समय में एकदम बचा लिया जाता है। वो मैंने तो कई बार ये महसूस किया है, आप लोग भी आगे चल के महसूस करेंगे अगर नहीं किया है, कि किस तरीके से भगवान आपको बिल्कुल आंच भी नहीं आने देते हैं। तो भगवान ने ये क्यों अर्जुन के द्वारा डिक्लेयर किया, उसका भी रीजन है। अगर किसी को याद हो तो महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त भीष्म पितामह भी थे, और अर्जुन भी उनका बहुत बड़ा भक्त है। तो लेकिन हुआ क्या कि भीष्म पितामह गलत पक्ष में चले गए, यानी कौरवों के पक्ष में। तो ऑब्वियसली जीतेगा कौन? पांडव ही। तो उस समय क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे तो दुर्योधन हमेशा भीष्म पितामह को बुरा भला बोलता रहता था कि क्योंकि आप पांडवों से प्रेम करते हैं तो इसलिए आप उनकी तरफ पक्षपात कर रहे हैं, आप उनसे पूरी ताकत लगा के लड़ते नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे तो फिर आप उनको कभी भी कंट्रोल नहीं, आप उनकी तरफ झुके हुए हैं, तो यानी आप शत्रु पक्ष की तरफ आप ज्यादा झुकाव है। तो इस तरीके से दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उकसाना शुरू कर दिया। तो भीष्म पितामह को भी बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अगर ऐसी बात कहते हो तो मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये जो 5 बाण हैं, ये मैं 5 स्पेशल बाण मैं तुम्हें निकाल के देता हूं, इन 5 बाणों से या तो मैं कल 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा, और नहीं तो फिर कृष्ण को जो अपना वचन दिया हुआ है, कृष्ण भगवान ने अपना वचन दिया था कि वो युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाएंगे, तो कृष्ण भगवान को अपना वो वचन तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज कल होके रहेगी। तो क्यों? तो उन्होंने तो इस तरीके से 5 बाण उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये 5 बाण हैं, हो सकता है कि कल को मेरा मन बदल जाए, लेकिन तुम अपने पास रख लो और ये मुझे कल युद्ध के समय दे देना। तो इस तरीके से उन्होंने दुर्योधन को 5 बाण दे दिए। लेकिन अब ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत है कि भगवान तो पता है कि अपने भक्तों को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं, तो और भगवान से कुछ भी चीज छुपी नहीं है। तो उन्हें समझ में आ गया भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में भी विराजमान है। और अर्जुन क्योंकि दुर्योधन का छोटा भाई था, तो पहले के समय में इवन शत्रुओं के बीच भी इतनी मैं कहूंगा कलयुग नहीं था उस समय भी, पूरी तरीके से कलयुग का प्रभाव नहीं था। कलयुग भी छोड़ के चले गए, उसके बाद कलयुग का प्रभाव हुआ परीक्षित महाराज के समय। तो उस समय भी ऐसा होता था कि युद्ध तक दोनों लोग युद्ध करते थे, लेकिन युद्ध के बाद कोई भी रंजिश आपस में नहीं होती थी। तो अर्जुन क्योंकि दुर्योधन का छोटा भाई था, तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम जाओ युद्ध के बाद और दुर्योधन से बोलना कि स्पेशल 5 बाण हैं तुम्हारे पास जो तुम्हें भीष्म पितामह ने दिए हैं वो वापस कर दें। तो दुर्योधन जब युद्ध खत्म हो गया तो शाम के समय दुर्योधन के पास गया, और तो दुर्योधन ने बहुत उसे गले लगाया, बोला कि तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं युद्ध ना करूं और तुम्हें पूरा का पूरा राज्य दे दूं तो मैं वो भी दे दूंगा। तो ये युद्ध के बाद की इन दोनों की ये इस तरीके से आपसी बोलेंगे कि उस समय इतना आपसी सामंजस्य रहता था। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे दान दिया हुआ राज्य नहीं चाहिए, मैं राज्य के लिए नहीं आया हूँ, उसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि युद्ध होके ही रहेगा। तो वो तो मैं अपनी कैपेबिलिटी से, यानी मैं खुद विजय प्राप्त करके ही राज्य प्राप्त करूंगा। तो फिर उन्होंने बोला तो और क्या चीज तुम्हें चाहिए? तो उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह ने आपको 5 बाण दिए हुए हैं, वो मुझे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने इस तरीके से दुर्योधन ने वो 5 बाण दे दिए। फिर अगले दिन जब भीष्म पितामह ने बोला कि लाओ वो 5 बाण लाके दो, तो उन्होंने बोला वो तो कल अर्जुन शाम को मेरे से मिलने आया था और वो मुझसे वापस लेकर चला गया। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कृष्ण है और कृष्ण की वजह से ही मेरा ये वचन पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसके बावजूद भी आज मैं पूरी जान लगा दूंगा। तो इस तरीके फिर उन्होंने इतना भीषण युद्ध करना शुरू किया कि एकदम ऐसा लगने लग गया कि वो अर्जुन का वध ही कर डालेंगे। और उस समय कृष्ण भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने जो चक्र था वो ऊपर, रथ पूरा उनका टूट गया था, उन्होंने रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़ने लग गए। तो एक्चुअली में वो मारने नहीं जा रहे थे। उन्होंने बोला कि क्योंकि तुमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि या तो तुम 5 पांडवों को मार दोगे या कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, और क्योंकि तुम भी मेरे भक्त हो
तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भी, जो तुमने प्रतिज्ञा ली है, उसका भी भंग नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि अर्जुन मेरा भक्त है, तो मैं अर्जुन को भी अपने सामने मृत्यु प्राप्त नहीं होने दे सकता हूँ। और क्योंकि सत्य की विजय में अपना ही वचन तोड़ दिया, तो भगवान तुम डिक्लेयर करो कि भगवान हो। भगवान एक्चुअली, भगवान के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। भगवान हो सकता है कोई वचन दिया उसे फुलफिल करें नहीं करें, क्योंकि भगवान, श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि युद्ध के बीच में वो पीठ दिखाकर चले गए, और उसके बावजूद भी वो फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी का बुलावा आया, तो भक्त वत्सल ज्यादा, उन्हें अपनी कोई भी अपने मान सम्मान की कोई फर्क नहीं थी। उन्हें लगा कि नहीं, रुक्मणी जी ने किसी ब्राह्मण को भेजा है, ब्राह्मण को आदर सत्कार करना मेरी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये युद्ध तो मैं बाद में भी लड़ लूंगा। तो इस तरीके से वो युद्ध छोड़ के चले गए। और अगर जनरल सीक्वेंस में देखा जाए तो कोई भी युद्ध छोड़ के चला जाता है तो उसको बहुत ही बुरा भला कहा जाता है कि अरे उसने रण छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण भगवान को उसके बावजूद भी वो फेमस हुए। रणछोड़ के नाम पे एक मंदिर है जिसमें रणछोड़ा गोपीनाथ मंदिर, जिसमें भगवान की इसी इसी भक्तों के प्रति इसी अनुकंपा की लोग पूजा करते हैं, इसी की वजह से वो फेमस है। लेकिन तो भगवान के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि अगर भक्त ने कुछ बोला है तो मैं उसे फुलफिल करूंगा ही करूंगा। अगर भक्त ने कोई चीज बोली हुई है, तो इसलिए भगवत गीता में उन्होंने खुद नहीं बोला कि कि मैं ही डिक्लेयर करता हूं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि मेरा तो फेमस है कि मैं अपने भक्तों को सेवा को ऊपर उठाने के लिए या भक्तों की बात रखने के लिए मैं अपना वचन भी तोड़ देता हूं। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भक्त का वचन तोड़ दिया हूं। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन, जो कि उनका भक्त था, उससे ये बात बोली। तो इसीलिए भगवान से भी बढ़ के, भगवान की सेवा से भी बढ़ के अगर कोई भगवान के भक्त की सेवा करता है, तो इवन भगवान भी उससे नतमस्तक होते हैं। यानी कोई भगवान के भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पे लेता है, तो भगवान की डिवोशनल सर्विसेज उसके लिए गारंटीड होती है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो श्रील प्रभुपाद थे, जिन्होंने भी उनकी सेवा करी, भले वो क्वालिफाइड थे या नहीं थे। अगर हम लोग देखें तो वेस्ट में जब वो गए थे, लोग पूरी तरीके से हिप्पी थे, धुआं, धूम्रपान या फिर मांसाहार या जुआ, अवैध यौन संबंध, सारे के सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ रहे थे। बट क्योंकि उन्होंने बस श्रील प्रभुपाद को पूरी तरीके से सरेंडर किया, तो कृष्ण भगवान ने उनको पूरी की पूरी इंटेलिजेंस दी, पूरी तरीके से प्योरीफाई किया और पूरी तरीके से भक्ति में लगाया। अगर कोई डायरेक्टली सोचता कि मैं कृष्णा को डायरेक्टली अप्रोच कर लूंगा और मैं भक्ति कर लूंगा, जैसे कि आजकल के कई सारे गुरु हैं, बोलते हैं अरे कृष्णा से तो मेरा डायरेक्ट संबंध है, बीच में कोई गुरु वुरु नहीं है, मैं बस डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो रियल में कृष्णा उनको कोई वैल्यू देते ही नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने बोला है कि जो मेरे भक्त की भक्ति करता है, रियल में मैं उसको ही भक्त मानता हूँ। तो बोला है कि भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ डिसाइप्लिक सक्सेशन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। डिसाइप्लिक सक्सेशन का अर्थ यही है कि गुरु शिष्य परंपरा, तो यानी कि एक जो गुरु है, यानी श्रील प्रभुपाद की या भगवान के परम भक्त की कृपा प्राप्त करी है। यानी अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल में भी देखें, तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से के चरणों में पूरी तरीके से अपने को सरेंडर किया, और इस तरीके से कृष्ण भगवान ने उन पर कृपा बनाई। और ए मूवमेंट्स एसोसिएशन, यानी कि एक पल का एसोसिएशन से ही, अगर कोई साधु का संग करता, तो एक पल के एसोसिएशन से उसकी पूरी लाइफ की दिशा चेंज हो जाती है। ये हम लोग ने श्रील प्रभुपाद के केस में देखा ही कि किस तरीके से वो एक यंग कॉलेज स्टूडेंट थे, और किस तरीके से उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को पहली बार ही मिले, और पहली बार में उन्होंने बोला कि तुम यंग एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट हो, तो क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करते हो। तो तब उस समय वो पूरी तरीके से, उनको ये लगता था कि अरे हमारा देश तो गुलाम है, तो कौन इन बातों को सुनेगा। तो उन्होंने वही पक्ष रखा कि जो आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा देश गुलाम है, तो कौन इन बातों को सुनेगा। तो उसपे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया कि किस तरीके से ये जो गुलामी है, ये सारी जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, ये सब सिर्फ टेम्परेरी है, ये सब सिर्फ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन की वजह से। बट रियल में चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ भी होती जाए, लेकिन जब तक ये एक सोल इस मटेरियल बॉडीली कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ में कवर्ड रहेगी, यानी जो बाहर से उसने एक मैटर की जो शरीर ओढ़ के रखा हो, जो कि पंचभूत का बना हुआ है, पंचभूत मतलब कि 5 चीजों का, अर्थ, फायर, वाटर,
इथर, एयर, इन सब का कॉम्बिनेशन का बना हुआ है, उसी को स्वयं जब तक मानता रहेगा, भले एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ भी हो, तो वो भौतिक जगत में भटकता ही रहेगा। तो उससे निकालना ज्यादा जरूरी है, एक्सटर्नल सिचुएशंस तो चेंज होती रहेंगी। और उसी समय ही श्रील प्रभुपाद पूरी तरीके से उनकी जो भी कवरिंग थी इल्यूजन की उस समय तक, वो पूरी तरीके से खुल गई। और उसी समय उन्होंने सोचा कि मैं ये जो है इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और इन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है मैं इसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला था जब वो 24 वर्ष के थे, और फाइनली उन्होंने जाके संन्यास लिया जब वो 60 वर्ष के थे। लेकिन उसके बावजूद इस 24 से 60 वर्ष के बीच में वो कभी भी अपने महाराज, अपने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन को भूले नहीं। पूरी जिंदगी वो यही ट्राई करते रहे कि किस तरीके से मैं पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करूंगा। तो रियल में पूरी लाइफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस उनकी थी, जो कि उन्होंने फाइनली मैनिफेस्ट हुई आफ्टर 60 ईयर। तो ऐसा नहीं कि उसके बीच में वो कोई कार्य नहीं करते। तो उस समय भी वो 64 माला करीब डेली वो चैंट करते थे, भगवान की खुद ही सारी भोग अर्पण करते थे, खुद ही भगवान के सिलते वगैरह थे, श्रीमद् भागवतम 4 घंटा अध्ययन करते थे, साथ में एक बिजनेस तो करते ही थे और 2 बिजनेस साथ में करते थे। यानी हम लोग सोच सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा थी और कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते थे वो। 2 बिजनेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि शुरू में उनको लगता था कि क्योंकि उनके गुरु ने उनको 2 निर्देश दिए थे कि कभी भी पैसा प्राप्त हो धार्मिक ग्रंथों का को लिखना अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा था कि भक्ति के प्रचार पूरे विश्व में करना। तो उनको ये लगता था कि शायद मैं मेहनत करके, बहुत मेहनत करके जो पैसा कमाऊंगा उसके द्वारा मैं भगवान के धार्मिक ग्रंथों को लिखूंगा, उनकी छपाई करवाऊंगा और भक्ति का प्रचार करने विदेश जाऊंगा। पर भगवान को तो अपनी दूसरे तरीके से अपनी महिमा दिखानी थी कि एक्चुअल में मेरे भक्त को किसी भी एक्सटर्नल चीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली जब प्रभुपाद विदेश गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपए भी नहीं थे। 40 रुपए लोग बोलते हैं उनके पास थे, बट वो भी कोई पैसा वहां जाके खर्च नहीं हुआ था। कुछ लोग बताते हैं कि वो भी जानने से पहले उन्होंने जो 40 रुपए भी थे वो भी अपने पुत्र को दे दिए थे कि वहां इससे कुछ भी नहीं होगा, 1 दिन का भी ये खर्चा नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित होकर जा रहा हूँ। तो और उस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया पेनीलेस होकर। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और ये चमत्कार हम लोग इससे समझ सकते हैं कि भगवान ने जो चीज बोली कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त ने जो इच्छा करी, अगर वो चाहता है कि वो भक्ति का प्रचार करे, तो ऑब्वियसली सब कुछ करने वाला, सारा ग्राउंड सेटिंग करने वाला सब कुछ भगवान ही होते। लेकिन किसी ने प्रभुपाद से पूछा भी कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही पूरे विश्व में क्यों नहीं भक्ति का प्रचार कर दिया? तो उन्होंने ये बोला कि वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो क्रेडिट अपने भक्त को देना चाहते हैं। सिमिलरली कई बार लोग बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों किया अर्जुन ने? तो कृष्ण भगवान चाहते तो युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, वो तो विराट रूप जब अपने सबको दिखा रहे हैं, उनका सुदर्शन चक्र गुरु उन्होंने छोड़ दिया, उसका तो कोई काट नहीं था, तो उनको उस युद्ध के करने की, अर्जुन को युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भगवान का ये तरीका ही होता है कि भगवान सारी की सारी क्रेडिट जो होता है अपने भक्तों को दे देते हैं। सिमिलरली कोई भक्ति करने की कोशिश करेगा और भक्ति का प्रचार करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली भगवान ही उसे एम्पावर्ड करेंगे, भगवान ही सारी सिचुएशन बनाएंगे, लेकिन उसका क्रेडिट सारा अपने भक्त को दे देंगे। तो इसलिए कभी भी पफड अप होने की जरूरत नहीं। जब हम भक्ति करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं या हम बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, तो रियल में समझना चाहिए कि ये सिर्फ कृष्ण कृपा के द्वारा ही पॉसिबल है। और कृष्ण कृपा तब पॉसिबल है जब कोई रियल में भगवान के भक्तों को सरेंडर करता है। So a similar statement is in the 3rd canto 7th chapter verse 19 of Srimad Bhagavatam. Let me become a sincere servant of the devotee, because by serving them one can achieve unalloyed devotional services onto the lotus feet of the Lord. The service of devotees diminish all material condition and develop within one a deep devotional love for the Supreme Personality of Godhead. तो इसलिए हम लोगों को हमेशा श्रीमद् भागवतम में भी दिया हुआ है कि we should become a sincere servant of the devotee. हमें भगवान के भक्तों के भक्त बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उन्हें सर्व करते हैं तभी हमें अनअलॉयड डिवोशनल सर्विसेज प्राप्त हो सकती है। तो हम लोग ने नारद मुनि के एग्जांपल में देखा था कि किस तरीके से नारद मुनि ने साधु पुरुषों का आदर सत्कार किया था अपने पिछले जन्म में, तो उसकी वजह से अगले जन्म में वो सबसे सर्वोच्च मुनि यानी नारद मुनि बने। Devotee, the service to the devotee diminish all miserable material condition and develop within one a deep devotional love for the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि अगर हम लोग जो भी प्योर डिवोटीज हैं जैसे श्रील प्रभुपाद या गुरुदेव, गुरु महाराज, तो अगर हम लोग उनको सर्व करते हैं तो उनसे हम लोग को ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और वो ब्लेसिंग क्या होती है कि हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। तो उन्हें सर्व, तो
जैसे हम लोग लास्ट सेशन में समझा था, सर्विस दो तरीके से होती है, एक तो वाणी सेवा, स्पिरिचुअल मास्टर्स को हर कोई वापू सेवा यानी पर्सनली सर्व नहीं कर सकता कि उनको पानी ला के दिया या ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग उनकी वाणी की सेवा कर सकते हैं। और उनकी वाणी क्या बोलती है कि जितना भी पॉसिबल हो सके सब लोगों को इस भौतिक जगत के अंधकार से बाहर निकालो। अगर कोई ये भी सर्व करने की कोशिश करता है, यानी भक्ति का प्रचार करने की कोशिश करता है और लोगों को कृष्णा की भक्ति में लगाने की कोशिश करता है, तो वो उन लोगों की तो भी वो स्पिरिचुअल मास्टर की या प्योर डिवोटीज को सर्व करता है, उनकी सर्विस करता है। और अगर कोई वापू सेवा प्राप्त कर सके यानी पर्सनली किसी तरीके से सर्व कर सके तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, परंतु पर्सनली सर्व करने का मौका बहुत ही कम आता है, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इतने सारे सर्वेंट हैं जो भी प्योर डिवोटीज होते हैं कि कभी भी कोई एक्सटर्नली कोई सोचे कि मैं कुछ स्पिरिचुअल मास्टर को पर्सनली कोई सर्विस प्रदान करूंगा तो वो बहुत ही मुश्किल ही होता है। बट कृष्णा की नजर में सब काउंट होता है, अगर आप दूर रह के भी सर्व कर रहे हैं तो वो भी कृष्णा समझते हैं। तो इवन श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जो डिवोटीज हमेशा है, हो सकता है कई बार वो मुझे उतना सर्व ना कर सके, लेकिन जो मुझसे दूर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार होता है कि हम लोग अपने जो भी किसी से इनिशिएशन लेते हैं, किसी के से इनिशिएशन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, कई बार पर्सनली उन्हें सर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दूर रहकर भी उन्हें जो अगर हम सर्व कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को सर्व कर रहे हैं, तो वो सर्विस उनको ज्यादा प्रिय होती है देन कंपेयर टू उनकी कोई पर्सनल सर्विस। सो इन द स्कंद पुराण there is a similar statement, person whose bodies are marked with tilaka symbolizing the council, wheel, club and lotus, and who keep the leaves of tulsi on their head and whose bodies are always decorated with gopi chandan, even seen once, can help the seer be relieved from all sinful reaction. तो इसमें बताते हैं स्कंद पुराण में कि अगर कोई ऐसा डिवोटी है, डिवोटीज हमेशा अगर हम लोग देखेंगे तो तिलक लगाए होते हैं, हर पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, जो हम लोग ने तिलक वाले सेशन में डिस्कस किया था। पहले के समय पे लोग कॉन्शल, व्हील, क्लब एंड लोटस भी लगाते थे। गौड़िया माधव संप्रदाय में हम लोग तुलसी पत्र ऑन द लोटस लीफ ऑफ राधा एंड कृष्णा हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो जो यू शेप होता है और नीचे तुलसी लीव होती है वो जनरली सिंबल होता है। अगर कोई भगवान के भक्तों को देखता भी है तो वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है कि मैं पुणे में था और पुणे इस्कॉन में नया नया जाना शुरू किया था, तो किसी ने एक दिन बोला कि अरे पुणे इस्कॉन के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट मतलब मेरे मन में ये इंप्रेशन आई, प्रेसिडेंट मतलब कोई सूटेड बूटेड कोई पर्सन आ रहा होगा, सूट टाई पहने होगा। तो मुझे कुछ पता नहीं था, उस समय बहुत ही नया था। तो प्रेसिडेंट उस समय राधे श्याम प्रभु थे, और राधे श्याम प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं और बहुत ही प्योर डिवोटी हैं। और जब वो आ रहे थे तो उनको मैंने देखा, बहुत ही उनका वैसे छोटा कद है, गेरुआ वस्त्र पहने हुए सन्यासी ब्रह्मचारी हैं वो, और आईआईटी के स्टूडेंट थे एक्चुअली, और काफी सीनियर पोजीशन में आईटी सेक्टर में थे, लेकिन भक्ति के प्रभाव से उन्होंने सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से भक्ति में रम गए। तो जब मैंने उनको आते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये पर्सन जो अभी दिखाई दे रहा है वो कितना अलग सा उसमें तेज दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी तरीके से चमक रहे थे वो। और उनको देख के मुझे लगा कि अगर इनको सिर्फ देखने मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज तक मैंने किसी भी इंसान को देखा तो मुझे वैसी फीलिंग नहीं है कि सिर्फ देख के ही मुझे अच्छा लगने लग जाए। और ये कैसे है? ऐसा तो उनकी प्योरिटी यानी उनकी भक्ति का प्रभाव था कि बस दूर से देखने मात्र से अंदर से हृदय से बहुत अच्छा लग रहा था। तो उस समय मैं एकदम ही नया भक्त था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कोई भी लेकिन उसके बावजूद भी इनडायरेक्टली मुझे कुछ ना कुछ सर्विस दे दी जाती थी। तो मैं जीन्स और शर्ट और ऐसे ही पहन के मंदिर में कुछ प्रसाद वितरण कर रहा था, और कुछ ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से वो मेरे पास आए और बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी फेरे। हालांकि वहां पे उस समय भी हजारों भक्त थे, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? मैंने बताया मैं टेक महिंद्रा में इंजीनियर हूँ, और उन्होंने बहुत प्रेम से मुझसे थोड़े बहुत सवाल किए। और उसके बाद में राधे श्याम प्रभु से एक्चुअली बैंगलोर में मेरी मुलाकात हुई करीब 12 साल बाद। और आप ये समझ सकते हैं कि भक्ति के प्रभाव से कितना शार्प मेमोरी होती है कि मैं उनसे मुलाकात करी मैंने, और मैंने बताया कि मैं आपसे पुणे में मिला था, और पूरी तरीके से वो मुझे पहचान गए कि हाँ मैं टेक महिंद्रा में काम करता था। और 12 साल आप ये सोचिए कि हजारों हजार भक्त से जो इंसान डेली मिलता हो, 12 साल पहले किसी एक भक्त से, कोई एक पर्सन से मिला जो वैसे मटेरियलिस्टिक हो एकदम, और उसको वो पहचान जाए, तो कितनी बड़ी बात है।
तो ये सब प्योर डिवोटीज का ऐसा रहता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्णा पूरी तरीके से जागृत होते हैं, तो उनको देख के ही इंसान प्यूरिफाई हो जाता है। तो उनको मैंने जब देखा ही तो मुझे समझ में आ गया कि भक्ति में कुछ तो बात है, जितना वो चमक रहे हैं, जिस तरीके से उनको देख के अच्छा फील हो रहा है। इवन मैं भक्तों का भी संग करता था, फिर मैं अपने वापस जाता था, अपने जो भी ऑफिस के फ्रेंड्स थे उनसे मिलता था, या अपने बाकी मटेरियलिस्टिक दोस्तों से मिलता था, तो मुझे लगता था बाकी पूरी दुनिया कितनी सेल्फिश है और कोई गुड क्वालिटीज नहीं है, और अगर डिवोटीज को मैं देखता हूँ तो कितनी गुड क्वालिटीज हैं। तो एक बार अगर कोई डिवोटीज के संग में आता है तो अपने आप ऐसा होता है कि उसको बाकी किसी में फिर मजा आना बंद हो जाता है। फिर उसको रियल में समझ में आता है कि किस तरीके से हर अगला इंसान जो कि गॉड कॉन्शियस नहीं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो अगले को सिर्फ क्या उसके पास पैसा है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से, या क्या किस ब्रांड के वो कपड़े पहन रहा है, कैसे उसके लुक्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ अपना मेल जोल बढ़ा रहा होता है। सिर्फ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो कि जिनके मन में ये सब कोई कंसिडरेशन नहीं होती। डिवोटीज में भी ऐसा हो सकता है, कोई बहुत रिच हो, कोई बहुत पुअर हो, कोई मिडिल क्लास हो, बट कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। तो एक बार भी अगर कोई भक्तों का संग करता है तो फिर वो कभी उसे भूल नहीं पाता। प्रभुपाद ने भी इस विषय में बोला है कि कुछ लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे और बाद में छोड़ के चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत में गए भी हैं तो उनको वो रस हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। हर कोई उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो बार बार फिर से भक्ति की तरफ बार बार इस कॉन में आते हैं। और वो खुद भी बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हम भक्तों से आके हमारी मुलाकात हो गई और हमें ये पता चल गया कि ऐसे प्योर लाइफ में उतरना। तो अगर कोई भक्तों का संग करता है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ मिल के ही उनसे इंसान प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। सो a similar statement is found in the first canto, 19th chapter, verse 33 of Srimad Bhagavatam. There is no doubt about one's becoming freed from all reaction to sinful activities after visiting a devotee or touching his lotus feet or giving him a sitting place. Even by remembering the activities of such a Vaishnava, one becomes purified along with one's whole family. And what then can be said of rendering direct service to him? तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में भी बताया है फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर वर्स 33 में कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इंसान है अगर वो डिवोटीज को विजिट करता है, उन्हें उनको देखने जाता है, उनके पैर छूता है या उनको बैठने के लिए आदर से स्थान देता है, तो वो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इवन बाई रिमेम्बरिंग द एक्टिविटीज ऑफ सच ए वैष्णव, अगर कोई उन्हें याद भी करता, तो हम लोग सब लोगों के पास प्रभुपाद लीलामृत होगी। जनरली प्रभुपाद लीलामृत ही ऐसी बुक थी जिससे पहली बार मेरा श्रील प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद लीलामृत पे एक्चुअली भक्ति चारू महाराज ने एक टेलीविजन सीरीज बनाया था, तो उसके द्वारा ही मुझे के पास टाइम से उसको मैंने रिमेम्बर किया। और फिर मुझे मैंने जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत थी वो परचेज करी, और जब मैंने उसको पढ़ा तो इवन प्रभुपाद की एक्टिविटीज याद करके ही इतना शरीर रोमांचित हो जाता है कि ऐसे भी लोग हैं, यानी ऐसे भी प्योर डिवोटी पॉसिबल हैं। हरे कृष्णा। तो जब हम देखते हैं कि कोई इतना भी कर सकता है, कोई इतना भगवान के प्रति इतना भी किसी के मन में प्रेम हो सकता है, या कोई दूसरों के लिए इतना भी कुछ कर सकता है, तो पहली बार जब मैं भक्तों के मैं एक्चुअली उस समय नया नहीं था, तो जनरली इस्कॉन में क्या होता है, जो डिवोटीज भक्त होते हैं पहले से बैचलर्स, वो बेस में रहते हैं। यानी कि मैं भी उस समय 22-23 साल का था, तो जितने भी बाकी भी अनमैरिड लड़के थे वो सारे साथ में रहते थे, और वो लोग घर में मंगल आरती वगैरह करते थे और प्रसाद वगैरह लेते थे और फिर अपने अपने ऑफिसेस जाते थे। तो मेरी उनसे मित्रता हो गई थी, तो मैं उनके यहाँ सैटरडे संडे जब मुझे मौका मिलता था मैं जाता था। और प्रभुपाद लीलामृत का एक्चुअली टेलीविजन सीरीज बना था, फिर उसकी डीवीडीज भी थी, तो वो मैं ऐसे ही देख रहा था। तो फिर मैं देख ही रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से प्रभुपाद बगैर कुछ खाए पिए बैक टू गॉडहेड मैगजीन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से गर्मी लू लगने से वो बेहोश भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे भक्ति पूरे सबको देनी है, क्योंकि यही इसके लिए ही लोग सफर कर रहे हैं। तो वो देखकर मुझे लगा कि कितना प्रभुपाद का त्याग है। तो इवन हम लोग प्रभुपाद का फिर जब लीलामृत पढ़ी, अभी भी हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में हैं जिसमें प्रभुपाद की जो अलग अलग लीलाएं वो हमेशा आती रहती हैं, तो हमेशा ही उसके द्वारा भी लोग वैष्णवों का संग कर सकते हैं। तो वैष्णव क्योंकि पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, तो भले उनको रिमेम्बर करो या वो पर्सनली प्रेजेंट हो,
दोनों बातें एक ही हैं। तो शिल प्रभुपाद जब पर्सनली प्रेजेंट भी थे तो इवन वो अगर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते थे। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक शुरू कैसे हुआ था कि प्रभुपाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, तो एक डॉक्टर जब उनको देखने आया तो डॉक्टर ने बोला कि प्रभुपाद इसलिए बीमार पड़ रहे हैं कि वो पूरे टाइम भक्ति करते हैं, यानी कि पूरे टाइम कभी वो बुक्स लिख रहे हैं, कभी वो चैंटिंग कर रहे हैं, कभी मंगल आरती कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो उनको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो वो बहुत बीमार पड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद को लगा कि ठीक है, ये सही बात बोल रहे हैं, तो मैं डेली सुबह नाम जप करने के बाद मंगल आरती से पहले वॉक पे जाऊंगा। और वॉक पे जब वो जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे डिवोटीज उनके साथ साथ चल देते थे वॉक के लिए। तो जब वो वॉक पे भी जाते थे तो भी वो हमेशा हर चीजों में कृष्णा कॉन्शियस एस्पेक्ट से उसकी नॉलेज देते थे। तो जितने भी डिवोटीज होते थे, वो आज भी जो डिवोटीज हैं वो सब रिलिश करते हैं कि हम लोग प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक को आज तक नहीं भूले हैं। तो कभी प्रभुपाद जाते थे, जैसे कभी एक घर उन्होंने प्रभुपाद ने देखा, और प्रभुपाद ने बोला कि ये घर कितना सुंदर है, इसमें एक एक चीज एकदम अलंकृत तरीके से लगी, इसकी खिड़कियां कितनी सुंदर हैं, इसका लॉन कितना सुंदर है, इसका एक एक साजो सज्जा कितनी सुंदर। तो सारे के सारे डिवोटी भी देखने लगे कि प्रभुपाद क्यों इस घर की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, प्रभुपाद तो बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, तो क्यों ऐसे तारीफ कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद ने फाइनली बोला कि इतना ज्यादा भव्य सुंदर घर है ये, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने इसको बनवाया है वो कितनी ज्यादा मेहनत से, कितना ज्यादा अटैच होगा वो इस घर से। और इतना ज्यादा अटैच होने के कारण जब वो मरेगा, जब उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि इसने करोड़ों रुपए इस घर को बनाने में लगाया होगा, तो जब इसकी मृत्यु होगी तो भी वो इस घर के अटैचमेंट की वजह से इस घर को त्याग नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि इस घर के अटैचमेंट की वजह से, लॉ ऑफ कर्मा की वजह से, वो वापस इसी घरों में कॉकरोचेस की तरह पैदा होगा। तो तब डिवोटीज को समझ में आया कि प्रभुपाद क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वही सब स्थिति इस समय मटेरियलिस्टिक लोगों की भी है, क्योंकि क्या होता है कि अपनी सारी जमा पूंजी सब कुछ वो अपना भव्य घर बनाने में लगा देते हैं, और जिसका कि वो उपयोग मुश्किल से मृत्यु के 20-30 साल पहले तक कर पाते हैं, परंतु पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, सारा लोन, सब कुछ उनका उसी घर के लिए लगा रहता है। तो आखिरी में मृत्यु के समय में भी वो वही सोचते रहते कि किस तरीके से इस घर को मैं काश थोड़ा और इंजॉय कर पाता। और क्योंकि भक्ति अगर किसी ने नहीं करी तो फिर उसको फिर से मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जनरली वो कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बन के, कभी चूहा बन के, कभी कीड़े बन के, कभी कॉकरोच बन के उन्हीं घरों में वापस पड़ा रहता है। और फिर अगला जो मालिक होता है वो देखता है, अरे इस घर में इतने सारे कॉकरोचेस हैं, और वो तुरंत स्प्रे लेकर दौड़ता है उनके पीछे, या उनके पीछे चप्पल लेके दौड़ रहा होता है। बट उसको ये नहीं पता होता कि कभी ना कभी पहले ये इस जमीन का मालिक होगा या इस घर का मालिक होगा, और इस जमीन से या घर से अटैचमेंट की वजह से वो आज यहाँ कॉकरोच योनि में भी पड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद के साथ भले वो श्रीमद् भागवतम बोलते हो, या भगवान प्रभुपाद भले वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं, लेकिन उनके एसोसिएशन हमेशा कंप्लीटली प्यूरिफाइंग होता था। उससे लोगों को रियल पर्सपेक्टिव दिखाई देता था कि प्रभुपाद हर चीजों को किस तरीके से बता रहे। प्रभुपाद जब भी जाते थे कुछ ना कुछ नई बात बताते थे, किस तरीके से जितने छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या मेढक हो, जैसे मेढक, हरे कृष्णा, भले कोई कीड़ा मकोड़ा हो, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि इवन मेढक वगैरह जमीन के अंदर सांस ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं, मछलियां पानी में सांस। तो भगवान ने सब जानवरों तक को, सब कीड़े मकोड़ों तक को कुछ ना कुछ शक्तियां प्रोवाइड करी, कुछ ना कुछ सिद्धियां हैं। चिड़िया वगैरह उड़ सकती है, इंसान नहीं उड़ सकते। तो किस तरीके से भगवान ने पूरी की पूरी डाइवर्सिटी बनाई है, और उसके बावजूद साइंटिस्ट सोचते हैं कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड जस्ट बाई चांस, हर चीज एकदम अपने आप, कुछ बम विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और सब बाई चांस क्रिएट हो गया। तो ये उन लोगों की मूर्खता है। तो किस तरीके से इवन साइंटिफिकली हर चीजों को प्रभुपाद बताने की कोशिश करते थे। सो कोई भी अगर भगवान के भक्तों का संग करता है, उन्हें विजिट करता है, या फिर उनके पैर छूता है, इवन अगर हम लोग देखें तो श्रील प्रभुपाद के पैर छूना अलाउड नहीं था किसी भी एक्सटर्नल को। एक्चुअली जो भी प्योर डिवोटी होता है, अगर उसके कोई भी पैर छूता है, यानी उसकी चरण रज प्राप्त करता है, तो उससे फायदा ये होता है, जो पैर छू रहा है उसको तो पूरा फायदा होता है, कि जिसने भी पैर छुए किसी प्योर डिवोटी के, तो वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन जिस डिवोटी के पैर छुए होते हैं, यानी जिसके चरण रज प्राप्त करी होती है, उसको उसका सारा सिंफुल रिएक्शन प्राप्त होता है, यानी उसका जिसने भी पैर छुए उनका सिंफुल रिएक्शन लेना होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो भी प्योर डिवोटीज थे, जो भी उनके डिसाइपल्स थे, वो और किसी आउटसाइडर को पैर छूना अलाउ नहीं करते, क्योंकि इंडिया में जनरली टेंडेंसी होती है कि लोग सन्यासी वगैरह के पैर छू लेते हैं, बट उससे होता क्या है कि इट मे बी पॉसिबल कि वो प्योर डिवोटी सफर करने लग जाए, यानी कि
उसको, क्योंकि सिंफुल रिएक्शन की वजह से अगले के सफरिंग हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभुपाद इतने ज्यादा कंपैशनेट थे कि उसके बावजूद अगर कोई उनके एकदम पैर छूने की कोशिश करता था तो वो मना नहीं करते थे, बोलते थे कोई बात नहीं। इवन प्रभुपाद अपने जीते जी भी प्रभुपाद की लोगों ने डीटीज एस्टेब्लिश कर दी थी इस्कॉन में, सब लोग प्रभुपाद को आके प्रे करते थे। तो एक बहुत बड़े डिवोटी थे दूसरे रामानुज संप्रदाय के, जिनको ये बात पता थी कि अगर जीते जी किसी के मूर्ति स्थापना है, यानी कि किसी की अर्च विग्रह की स्थापना है और लोग जाके उनको प्रे कर रहे हैं, तो सारे के सारे दुख अपने वो लोग उस डिवोटी को दे देंगे। तो वो उनके पास पर्सनली अपने पैसे खर्च करके गया, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आपको पता है कि इसका क्या रिपरकर्शन है, आपको कितना ज्यादा दुख प्राप्त होगा इसकी वजह से, जो लोग आपके जीते जी आपकी अर्च विग्रह की आराधना कर रहे हैं और अपने सारे दुख आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने, तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं इस भौतिक जगत में आया किस लिए हूँ। तो उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तो वो उन्होंने प्रभुपाद को सरकम्बलेट किया और बगैर कुछ बोले वहां से चले गए। तो प्रभुपाद एक्चुअली आए ही इसीलिए थे कि किस तरीके से यहाँ पर सफरिंग लिविंग एंटिटीज जो पूरी तरीके से सफर कर रहे हैं, जिनको अपनी कोई भी रियलाइजेशन है ही नहीं कि किस तरीके से उनका क्षणिक जीवन है, हर कोई यही सोच के जी रहा है कि शायद मेरा ही जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी पहले लोग जी चुके थे उनका कुछ नहीं था, बट मैं तो कुछ समथिंग डिफरेंट हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और होना कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग भी आगे चल के हिस्ट्री बनने वाले हैं। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहाँ गया किसी को नहीं पता, उसने पूरी दुनिया भी जीती थी, आज पूरी दुनिया में दूसरे दूसरे रूलर हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं आज को वो कहाँ पर है कोई नहीं जानता। ये इस जगह पे जहां हम बैठे हुए वहां इससे पहले कितने ही राजा हुए होंगे, हम लोगों को किसी के बारे में पता भी नहीं होगा। तो एक्चुअली इसी तरीके से लोग माया में फंस के लगे रहते हैं, शायद मैं राजा बन रहा हूँ, मैं प्रजा बन रहा हूँ, मैं सैनिक बन रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बन रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहा हूँ, मैं आईएएस आईएफएस आईआरएस कुछ भी बन रहा हूँ। लोग यही सोच के सोचते हैं मैं शायद बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हूँ और मैं कुछ बन रहा हूँ, बट वी आर ऑल बिकमिंग हिस्ट्री ओनली। अभी आगे आने वाले 20-30 साल में हम लोग भी वही उसी तरीके से हिस्ट्री बन जाएंगे जिस तरीके से हम लोगों के बाबा पर बाबा हिस्ट्री बन चुके हैं, और उनकी लाइफ में क्या हुआ आज को किसी को कोई फर्क नहीं है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी क्या हुआ किसी को कोई फर्क नहीं होने वाला होगा, लेकिन अगर हमने भक्ति कर ली तो हमें जरूर फर्क होगा कि हम लोग भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। So in the Adi Puran, there is following statement by Lord Krishna himself addressing to Arjuna: "My dear Partha, one who claimed to be my devotee is not so. Only a person who claimed to be devotee of my devotee is actually my devotee." तो भगवान ने इसीलिए आज के नए नए गुरुओं को क्लियर करने के लिए ही ये चीज बोली है कि आदि पुराण में कि अर्जुन अगर कोई डायरेक्टली बोलता है कि मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ, मुझे सारी नॉलेज अपने आप प्राप्त हो गई, मैं कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ, मुझे सारा ज्ञान मिल गया, वो एक्चुअली मेरा भक्त है ही नहीं। और जो बोलता है कि मैं उनके भक्त का भक्त हूँ, यानी कि हम लोग देखें प्रभुपाद वगैरह को, वो सब अपने वो यही बोलते थे कि जो भी हमें प्राप्त हुआ हमारे गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, यानी जो गुरु परंपरा से कनेक्टेड है वही रियल में मेरे डिवोटी हैं। No one can approach the supreme personality of Godhead directly. ये चैतन्य चरितमृतम में बताया, one must approach him through his pure devotee. Therefore, in the system of Vaishnava activity, the first duty is to accept a devotee as spiritual master and then to render service unto him. Srila Rupa Goswami affirm all the quotation given in the Bhakti Rasamrita Sindhu from the different scripture are accepted by the great acharyas and the devotees of the Lord. So भगवान को कोई भी डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकता, सिर्फ खाली उनके भक्तों के द्वारा ही अप्रोच किया जा सकता। तो इसलिए हम लोग भी जब प्रसाद ऑफर करते हैं, अगर किसी ने अभी तक कोई गुरु नहीं समझा है तो वे लोग श्रील प्रभुपाद को पहले प्रसाद ऑफर करते हैं, और श्रील प्रभुपाद अपनी गुरु परंपरा में उस प्रसाद को आगे पहुंचाते हुए वो कृष्ण भगवान तक वो प्रसाद पहुंचता है। कोई भी डायरेक्टली कृष्णा राधा को अगर भोग लगाएगा भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई श्रील प्रभुपाद को भोग ऑफर करता है तो उस गुरु परंपरा में वो डायरेक्ट भगवान के पास प्राप्त होता है। So the importance, so nectar of devotion, this is from Nectar of Devotion, chapter 12, 102. So the importance of discussing Srimad Bhagavatam in the society of pure devotee was explained by Sonaka Muni during the meeting at Naimishara in the presence of Suta Goswami. Suta Goswami confirmed that if someone is fortunate enough to associate with a pure devotee of Lord even for a moment, that particular moment is so valuable that even those pious activities which can promote one to heavenly planet or give liberation from material miseries cannot compare to it. In other words, those who are attached to the Srimad Bhagavatam do not care for any kind of benefit derived from elevation to the higher planetary system or for the liberation which is conceived by the impersonalists. As such, the association of pure devotees is so transcendently valuable that no kind of material happiness can compare to it. तो इसमें हम लोग और चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। श्रीमद् भागवतम में जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके बारे में ही, उनके ही
पास टाइम्स लिखे हुए हैं, भले वो नारद मुनि हो, भले वो ध्रुव महाराज हो, भले वो प्रहलाद महाराज हो, तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम वगैरह भी पढ़ रहा है तो वो प्योर डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो उसको उससे जो उसको पायस क्रेडिट्स अचीव हो रहे हैं उनको किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। In the Hari Bhakti Subodhaya, there is a conversation between Prahlad Maharaj and his father Hiranyakashipu, in which Hiranyakashipu addressed Prahlad in this way: "My dear son, association is very important. It acts just like a crystal stone, which will reflect upon anything which is put before it. Similarly, if we associate with the flower-like devotee of the Lord, and if our hearts are crystal clear, then certainly the same action will be there." तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले के समय में तो हिरण्यकश्यप को भी इतना ज्यादा नॉलेज थी। हिरण्यकश्यप जो कि पूरी तरीके से राक्षस था, उसने भी जब देखा कि प्रहलाद पूरी तरीके से डिवोटी बन रहे हैं, पूरी तरीके से उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, तो उन्हें ये लगा कि अरे राक्षस कुल में इतनी अच्छी क्वालिटीज कैसे आ रही हैं, तो उन्होंने बोला कि जरूर तुम किसी ना किसी प्योर डिवोटी से एसोसिएट कर रहे हो, क्योंकि प्योर डिवोटी से अगर कोई एसोसिएट करता है तो वो एकदम क्रिस्टल स्टोन की तरीके से काम करता है, यानी कांच के टुकड़े की तरह, जो कि कुछ भी जो उसके सामने रखा जाए वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी अगर कोई डिवोटी से एसोसिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिवोटी जैसी क्वालिटीज आने लगेंगे। तो अगर कोई भक्तों से ही एसोसिएट करता है तो उसका हार्ट जो होता है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये हिरण्यकशिपु से जब उसने देखा कि प्रहलाद महाराज के अंदर इतने अच्छे गुण आ रहे हैं, तो आज की डेट में तो राक्षस को छोड़ दीजिए, अच्छे से अच्छे लोग जो पंडित घराने में भी पैदा हुए रहते हैं उनको भी ये चीज नहीं पता होती है कि भक्तों का संग करने से क्या लाभ होता है। सो अनदर एग्जांपल गिवन इन दिस कनेक्शन इज दैट इफ ए मैन इज पोटेंट एंड ए वुमन इज नॉट डिसीज्ड, देन बाय देयर conjugation there will be conception. In the same way, if the recipient of spiritual knowledge and the deliverer of spiritual knowledge are sincere and bona fide, there will be good results. तो अगर जो ज्ञान दे रहा है और जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अगर दोनों के दोनों लोग अगर सिंसियर हैं, बोनाफाइड हैं, तभी जाके रिजल्ट होगा। अगर उनमें से कोई भी बोनाफाइड नहीं, कोई भी सिंसियर नहीं है, एक भक्त है दूसरे को भक्ति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। एक चैंटिंग के बारे में बता रहा है, अगला अगर चैंटिंग नहीं कर रहा है तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर जो बता रहा है वो खुद भी नाम जप कर रहा है और जो सुन रहा है वो भी आगे चल के नाम जप कर रहा है, वो भक्ति में आगे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तभी तभी उसे कोई फायदा होगा। अगर कोई सिर्फ सुन रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, यानी चैंटिंग नहीं कर रहा है प्रॉपरली, सिंसियरली नहीं कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द लास्ट सेशन। अगर कोई पढ़ना चाहता है, प्रीचिंग इज द एसेंस। हरे कृष्णा, सबको दिखाई दे रहा? Hare Krishna Prabhuji, can I leave now? Because I have Yeah, to- yeah, you can read. Yes, you can read. Hare Krishna. Sorry, you are saying you want to leave or you want to read? Sorry, I didn't get it. No, she left. She left. She wanted to Okay, leave. She wanted to join Okay, the other okay. class. Okay, okay. I'll read, Prabhuji. So can I? Okay. Preaching is the essence. For a preacher to have potency, he must be pure. Our Krishna consciousness movement is meant for this purpose. We want to create pure devotees so that other people will benefit by their association. In this way, the number of pure devotees increases. Professional preachers cannot create pure devotees. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. One second. It is. It is, right? Okay. Yeah. It is therefore important for all the preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotee and follow the regulative principles, refraining from illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. They should regularly chant the Hare Krishna Mahamantra on their beads, follow the devotional process, rise early in the morning, attend Mangala Arati, and recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita regularly. In this way, one can become purified and free from all material contamination. To make a show of devotional service will not help one. One must be a pure devotee following the devotional process. Then one can convert others to devotional service. If a preacher behaves properly in devotional service, he will be able to convert others
otherwise his preaching will have no effect. तो इसमें बताया है कि अगर कोई प्योर है, यानी जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्योंकि खुद पूरी तरीके से भक्ति कर रहे थे, सारे सिद्धांत पालन कर रहे थे, पूरी तरीके से प्योर डिवोटीज थे, तो जब वो वेस्ट में गए तो उन्होंने अकेले दम पे ही, यानी भगवान का नाम जप करके ही किस तरीके से इतने सारे डिवोटीज बना दिए, और उसके पहले किसी ने भी प्रयास किया तो वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर कोई खुद प्योर है, यानी कि कोई भक्त प्योर है, तो वो दूसरों को कन्वर्ट कर सकता है, वो दूसरों को भी भक्ति में लगा सकता है। लेकिन अगर खुद वो प्रॉपरली भक्ति नहीं कर रहा है, खुद नाम जप नहीं कर रहा है, खुद उसको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो रियलाइजेशन पास नहीं कर सकता दूसरे को। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो भी करीबी लोग हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, कल को हमारे बच्चे या फिर हमारे माता पिता या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जिनको भी हम प्रेम करते हैं, वो भी आगे चल के भक्ति करें, तो हमें सबसे पहले खुद बहुत ही स्ट्रांगली भक्ति करनी होगी। अगर जब हम खुद बहुत ही स्ट्रांगली भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा, हमारे अंदर भी कृष्णा की पोटेंसी और बढ़ती जाएगी, तो तब जब हम कुछ बोलेंगे तो उनके वो चीज डायरेक्ट हृदय में उनके असर करेगी और वो लोग भी आगे भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए सबको ये जरूरी है कि किसी भी तरीके से मेहनत करके नाम जप कम से कम जिस समय करते हैं पूर्ण सावधानी पूर्वक करें, और कभी भी जितने भी माला कर रहे हैं डेली उससे कम ना करें। यानी अगर वो 4 माला भी डेली कर रहे हैं तो डेली वो करें, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक जप करें, और धीरे धीरे वो देखेंगे कि अगर वो ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो फिर वो और लोगों को भी भक्ति में प्रोग्रेस करने में हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि जितना भी हो सके पूरी तरीके से प्यूरिफाइड होकर कार्य करें। और ये सब कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। एक्चुअली आर्टिफिशियली कोई सोचे कि आर्टिफिशियली अगर कोई सोचे मैं भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ या फिर मैं 4 नियमों का पालन नहीं भी करूंगा तब भी भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना होए नहीं प्रचार, यानी कि अगर कृष्ण भगवान के पीछे आपके बैकग्राउंड में शक्ति नहीं है तो कोई भी भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। और भगवान की शक्ति पीछे होने के लिए हम लोगों को खुद को प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए, और प्यूरिफाई होने के लिए नाम जप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग जितना भी सोच ले हमें प्यूरिफाई होना है, बट माया देवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम अपनी पोजीशन से गिर ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं, अगर कोई भगवान की का नाम जब बहुत ही सावधानी पूर्वक कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि नॉन डिवोटी एसोसिएशन जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो नॉन डिवोटी यानी जो सिर्फ पैसे या फिर जो सिर्फ अपोजिट सेक्स के बारे में सोचते हैं, अगर हम लोग भी ऐसे ही लोगों के संबंध में रहेंगे तो हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन डिवोटी सिर्फ पैसे रुपए के बारे में बात करते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं भगवान थे, उन्होंने भी ये चीज अपने पास टाइम्स में एग्जिबिट की है कि उनसे महाराज प्रातपारुद्र मिलना चाहते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अरे वो तो राजा है, राजा जिसके पास बहुत सारा धन है, यानी वो मेटलिस्टिक है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहता है। अगर मैं सन्यासी होकर उससे मिलूंगा तो मेरा भी मन उसी तरीके से आकृष्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोई पर्सन आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है जो सिर्फ पैसे रुपए के बारे में ही सोचता रहता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो आप भी सिर्फ पैसे रुपए के बारे में सोच के ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है जो सिर्फ अपोजिट सेक्स के बारे में बात करता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो सिर्फ वही कंटामिनेटेड थॉट प्रोसेस ही आपके तरफ भी आएगा। तो एसोसिएशन, इसीलिए इवन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी एसोसिएशन लेने से हम लोगों को मटेरियलिस्टिक लोगों का बचना चाहिए। तो जिस तरीके, और उसकी जगह डिवोटी एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, तभी हम लोग अपना ये जन्म सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि अभी पता नहीं कितने साल हम लोगों के पास और बचे हुए हैं। इवन बहुत ही आश्चर्य होता है हम लोगों को देख के, इवन हमारे बराबर के लोग, मुझे पता चलता है कई बार कि 38-40 साल के लोग हैं, उनकी मृत्यु हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ परेशानी हो गई। तो हम लोग को समझ में आता है कि जीवन कितना ज्यादा क्षणिक है। तो इसलिए हम लोग को उसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी पता नहीं हमारे पास आने वाले में 2-3-4 साल हैं, 5 साल है, 10 साल है, बट जितना भी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करके अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, हो सकता पूरा रियलाइजेशन हमें ना आए, उसके बावजूद भी अगर कोई, जब तक उसकी शरीर स्ट्रांग है, वो अगर भक्ति करता है, यानी भगवान का नाम जप करता है, तो भगवान, अगर वो भगवान को नहीं भी याद कर पाए तो भगवान उसे याद कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सबको जितना भी हमारे पास जीवन का समय श्रेष्ठ है उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक नाम जप करके, डिवोटी एसोसिएशन, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन, जब हो सके भगवान के धामों को जाना, ये सब चीजें हम लोगों को अपने लाइफ में जरूर उतारनी चाहिए।
हरे कृष्णा, थैंक यू। कोई अगर किसी को सवाल है तो वो पूछ सकता है। हाँ, तो सुनील प्रभु ने पूछा, when we say devotees devotee, then even Shiva or other god are also known as Krishna's devotee, but we say that instead of praying to the demigod we should do Krishna bhakti directly। आप सही बोल रहे हैं सुनील प्रभु कि अगर कोई लॉर्ड शिवा को भी अगर प्रे करता है, लेकिन प्रेयर्स में अगर कोई वो भौतिक चीजों को नहीं मांग रहा है, यानी अगर लॉर्ड शिवा को अगर कोई प्रे कर रहा है और उसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो लॉर्ड शिवा ऑटोमेटिकली उसको कृष्णा भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर देंगे। तो ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल। इवन राधे श्याम प्रभु भी जिनके मैं बारे में विषय में बात कर रहा था, वो उनकी पूरी फैमिली ही शाइवाइट्स थी, यानी कि शिव जी को पूजा करने वाली। सिमिलरली मैं अपने बारे में भी बता सकता हूँ कि मैं भी सिर्फ शिव जी की पूजा करता था, हमेशा उन्हीं की मैं डेली मंदिर जाता था। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता था जब भी मैं उनसे कोई भी मटेरियल डिजायर जब भी करता था, तो मैं मुझे बहुत ही ज्यादा ग्लानि महसूस होती थी और मुझे लगता था कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं आपसे कोई मटेरियल डिजायर नहीं करूंगा। और एक दिन फाइनली मैंने सोचा कि अब मुझे कोई भी आपसे मटेरियल डिजायर नहीं करनी है। और आई थिंक द वेरी नेक्स्ट विद इन ए वीक देन somehow I got the association of Krishna and Krishna's devotee। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग डेमिगॉड्स के साथ, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग डेमिगॉड्स को जब भी प्रे करते हैं, हम लोग सिर्फ यही प्रे करते हैं कि हमें कुछ पैसा चाहिए, हमें ये परेशानी है, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ ना कुछ यही प्रे करते रहते हैं। तो इवन डेमिगॉड्स भी हम लोग से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उनको भी लगता है अरे यार ये तो सिर्फ कुछ ना कुछ इसको चाहिए, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। तो हम लोग एकदम बिजनेसमैन की तरीके से डेमिगॉड्स को डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई डेमिगॉड्स, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, खासकर लॉर्ड शिवा तो परम भक्त हैं, अगर कोई लॉर्ड शिवा से इवन ये प्रे करता है कि लाइफ में मेरा क्या एम है, मुझे ये दिखाइए, या फिर क्या मेरे मैं क्यों इस भौतिक जगत में हूँ, कैसे मैं बाहर निकलूंगा, तो ऑटोमेटिकली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा एज वेल वन गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड वन विल गेट द कृष्णा डिवोशनल सर्विसेज। आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इट। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, थैंक यू ब्रो। तो जनरली हम लोग भी डेमिगॉड्स को अगर जब भी प्रे करते हैं, हम लोग यही बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी डेमिगॉड को प्रे करते हैं, नहीं अगर हम लोग कभी गणेश जी का मंदिर गए तो उनको यही प्रे करते हैं कि हमारे कृष्णा भक्ति में अगर हमारे पाथ में कोई भी रोड़ा आने वाला है तो उसको हटाइए। अगर हम लोग देख सकते हैं, रुक्मणी देवी का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि वो कात्यायनी जी के मंदिर में गई थी, यानी दुर्गा जी के मंदिर में गई थी, लेकिन उनका एम क्या था, कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। तो अगर कोई कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहते तो वो किसी डेमिगॉड को भी प्रे कर सकता है, लॉर्ड शिवा को भी प्रे कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हमारे मन में भी कृष्ण भगवान की भक्ति जगाइए। लेकिन लोग जनरली क्या होता है, डेमिगॉड से सिर्फ मटेरियल डिजायर्स लेके जाते हैं, तो मटेरियल डिजायर्स कोई लेके जा रहा है तो वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज विल एंड इट हियर। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर योर एसोसिएशन ऑन सैटरडे इवनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thanks.